हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज पल्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज अपन जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं बड़ा ही कॉमन टॉपिक है। हर बंदा जब कॉलेज से बाहर निकलता है ही टॉक्स अबाउट सेविंग कैसे करनी है, इन्वेस्टमेंट क्या करनी है, कैसे करनी है। सो आज जो टॉपिक अपन ने लिया है दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द यूथ हु आर कमिंग आउट ऑफ द कॉलेज एंड वांट टू जनरेट मोर इनकम इन द कमिंग ईयर्स। सो आज अपन बात करेंगे बेसिक ऑफ इन्वेस्टमेंट and what kind of investment one should do during the tenure. So basic of investment के ऊपर डिस्कशन करने के लिए आज जिसको अपनों ने इनवाइट किया है, he is a qualified CA, well professional in the capital market and he is in the industry more than 20 years. So I wholeheartedly welcome CA Dhiren Rotela sir. Dhiren ji, I welcome you in the Knowledge Pulse channel and I am hoping that this will be an interactive session and knowledgeable session for our viewers. Thank you, Sanjeev. Thank you for inviting me in this session, and I hope I'll be able to answer your questions and which will be useful to the viewers. Dhiren ji, to start with, first question I would like to ask, what is investment? Actual में investment क्या है? Sure, Sanjeev ji. So investment is basically an deployment of a fund or your idle fund in some way or other way, wherein you either earn something or you create your capital. So to be very simple, आपके पास कोई पैसे पड़े हैं बैंक में, so it is lying idle. So what you can do? You can put it in some other investment where आपको interest के फॉर्म पे या कुछ और रेवेन्यू के फॉर्म पे आपको उसको मिल रहा है. Otherwise that fund will keep lying there. So this is a very basic about investment. And we know investment is nothing a new concept to us. It is been there for years. Our parents, forefathers, they all have been doing investment. For example, in old time, they were investing in gold. So they were creating some kind of assets. So similarly, now there are various avenues of investment. But ultimately, the meaning of and the objective of investment is to earn something out of that, either by way of revenue or by way of capital creation. धीरेन जी, जैसा कि आपने बताया कि कोई भी जहाँ पर भी अपन पैसा लगाएं और उससे कुछ अपन एक्स्ट्रा कमाएं वो इन्वेस्टमेंट है. नाउ सेकंड क्वेश्चन कम्स इन माय माइंड, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट किस तरह की होती है, कहाँ कहाँ की जा सकती है? सो बेसिकली आपका जो इन्वेस्टमेंट है, देयर आर वेरियस एवेन्यूज इन विच यू कैन इन्वेस्ट. नाउ इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर नीड ऑफ व्हेन डू यू नीड द फंड. So whether you are looking for a short term need or you are looking for a long term need. For both the kind of investment, the avenues of investment are different. So जैसे कि आप है कि आपको कुछ पैसे आपको चाहिए जो at the time of retirement to basically look after your children's education या उनकी marriage के लिए. So it is a long term investment. And when you look for a very short term requirement, जैसे कि आपकी कोई immediate need है जो 2-3 years में आपको चाहिए, तो वो एक short term investment है. So depending upon your need of your investment objective, there are various type of investment. For example, bank FD, this is one form of investment, जिसमें आपका फंड बहुत ही लिक्विड रहता है, वो आप इमीडिएटली आप उसको कभी भी एनकैश करके आप उसके पैसे यूज कर सकते हैं. एंड ऑन दैट ऑल्सो यू अर्न इंटरेस्ट. डेफिनेटली इट इज ऑल्सो अ सिक्योर्ड फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट. सो सिमिलरली देर आर अदर टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट लाइक म्यूचुअल फंड्स, shares, then even properties and various other debt schemes and all, and then gold is there, all traditional kind of investment avenues. So these are the various type, and this new investment avenues keeps on coming in the market based on the new product which keeps on introduced in the market. But ultimately your all these investment product which I have stated, this all depends upon like when do you want that money to be your need of money. So this is how the investment products is basically can be categorized based on your needs. तो धीरेन जी, अपनों ने ये जाना इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ की जा सकती है. एक मेरे दिमाग में चीज़ आती है कि व्हाट इज़ द राइट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट. इज़ देयर एनी राइट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट कि इन्वेस्टमेंट कब स्टार्ट करना चाहिए, और अगर कोई लेट हो गया है सो व्हाट ही शुड बी डूइंग. अगर आप इसके ऊपर कुछ अपने इंसाइट दे सकते हैं. So Sanjeev ji, there is no right time for an investment. I can say that
investment has to be done whenever you want to do it or whenever you're required to do it. आप ये नहीं कह सकते कि only after this particular age I will do my investment. According to me, you should start investment at earliest of your age as possible, because तब आपके पास एक लंबा tenure मिलता है to actually gain out of that investment. Similarly, आपका investment का जो criteria होगा, अगर आप अर्ली एज में इन्वेस्टमेंट करते हैं देन यू हैव अ बिगर टाइम टू गेट द रेवेन्यू, बट एट द सेम टाइम यूर रिस्क एपिटाइट इज वेरी हाई एट द स्टार्ट ऑफ द पॉइंट. सो उसमें क्या होता है कि आप रिस्क ले सकते हैं. वेरेज अगर आप लेट स्टार्ट करते हो 40s 50s में, देन यू आर एक्चुअली एट द फैग एंड ऑफ योर व्हाट यू कॉल रिटायरमेंट. then that point of time you cannot actually take very risky product. So according to me, there is no fixed age something where you have to start, but I can only say that start investing at as early as possible so that you can get the best out of your investment. दोस्तों, जैसा कि धीरेन जी ने अपनों को बताया इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट किस तरह की होती है, एंड ट्रेडिशनल वेज अपनों को बहुत सारे पता हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, जैसे कि एफडी है, गोल्ड है, म्यूचुअल फंड्स हैं. बट एज यू नो, आज के टाइम में फ्लेवर ऑफ इन्वेस्टमेंट इज शेयर्स, बिकॉज एवरीबडी फाइंड दैट इज एक्साइटमेंट, राइट. सो आज अपन जो नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे वो लेने की कोशिश करेंगे शेयर्स पर. सो व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड व्हाट इज द व्यू ऑफ इन्वेस्टिंग इन शेयर्स. तो धीरेन जी, व्हाट इज योर व्यू? लोग अभी भी शेयर्स ट्रेडिंग को एक गैम्बलिंग मानते हैं एंड दे थिंक दैट इट इज़ वेरी रिस्की एंड वी शुड नॉट गेट इनटू अ शेयर ट्रेडिंग. But over the years, I feel that shares, it is not called share trading, it is called now capital market, because यहाँ पे आप अपना capital create करते हैं, right? So you have to actually change the your perspective about shares trading. And secondly क्या है कि आपका shares में जो investment है आपका, उसमें appreciation जो है, it is the fastest mode of creating an assets, unlike आपका जो ट्रेडिशनल जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं. सो मेरा यह कहना है कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स हैज़ टू बी इन योर वन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट. शेयर्स ट्रेडिंग इज नाउ नॉट द सेम वे विच इट यूज्ड टू बी अर्लियर. आज के डेट में आपके पास काफ़ी रिसर्च प्रोडक्ट्स भी होते हैं, रिसर्च होते हैं उसमें, एंड देयर आर लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स हु आर वर्किंग इन शेयर मार्केट. सो दे एक्चुअली एनालाइज द शेयर्स, एंड व्हेन यू इन्वेस्ट you have the options to go through all these kinds of reports, so that when you actually invest, you are not you're not blindly investing, you are actually taking a very calculated investment. So according to me, investment in shares is a very good avenue for all the millennials as well as for the established investors. So धीरेन जी, आपने बताया कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इज गुड फॉर द बेटर रिटर्न. नाउ फॉर बिगनर्स, सबसे पहला क्वेश्चन मेरे को ये आता है कि वो किस तरह के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आप देखेंगे तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ शेयर्स विच आर रजिस्टर्ड ऑन एनएससी एंड बीएसई. सो फॉर बिगनर्स, हाउ दे शुड चूज अ बेटर शेयर फॉर द इन्वेस्टमेंट? सो संजीव जी, डेफिनेटली दिस इज अ गुड क्वेश्चन, और ये हर एक बिगनर्स के माइंड में रहता है कि मैं किस शेयर्स में इन्वेस्ट करूं. सो मेरा इस पर यही कहना है कि आप उस चीज़ शेयर्स पे इन्वेस्ट करो जिसकी कंपनी का आप जानते हो या जिसकी प्रोडक्ट आप सालों से यूज़ करते हो, और जो एक फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स होते हैं. जैसे कि आप बैंकिंग में आप देखिए, जैसे कि SBI, ICICI, HDFC, यहाँ अपने अकाउंट होते हैं, या आप जो डेली यूज़ करते हैं, जैसे कॉलगेट के प्रोडक्ट हो गए या नेस्ले के प्रोडक्ट. सो इन कंपनियों के जो प्रोडक्ट जो आप सालों से यूज़ करते हैं, तो इनके शेयर्स में आप डेफिनेटली इन्वेस्ट करेंगे तो आप उसमें डेफिनेटली देयर विल बी सम रेवेन्यू, एंड एट द सेम टाइम आपको उसमें कहीं ऐसे दीज आर नॉट स्टॉक जहाँ पे आपके पैसे डूबने हैं. तो एज अ बिगनर आई विल से दैट यू शुड इन्वेस्ट इन फंडामेंटली गुड स्टॉक, नोन स्टॉक, एंड विच आर देयर फॉर लॉन्ग ईयर, सो दैट योर इन्वेस्टमेंट इज सेफ एंड इट डजंट गेट लॉस्ट. धीरेन जी, जैसे आपने मेरे को बताया कि अपनों को फंडामेंटली शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और कुछ शेयर्स के आपने नाम लिए लाइक HUL, लाइक इफ आई टेक एग्जांपल HDFC, मारुति, these are the shares which are more than 1,000 rupees से ऊपर के शेयर्स हैं. And as a beginners, people have a very small capital. They always tend to invest in a small shares where value is less, so that they can get a more shares. What is your view on this? Should they invest in a fundamentally good shares, or they should invest in a share where they can get a multiple lots of shares? Thank you.
So इसमें I can only say that when you invest in shares, don't look at the price, because price क्या है कि price is market driven. You should see the stock. अब फॉर एग्जाम्पल मारुति का शेयर्स की प्राइस अगर 6000 है और एक कोई एक फंडामेंटल स्मॉल स्टॉक है जिसकी प्राइस सपोज 100 रुपीज़ है, सी आपको इन्वेस्टमेंट फॉर एग्जाम्पल आपका जो मंथली इन्वेस्टमेंट आप करने जाते हो 10,000 रुपीज़, वेदर यू डू इट इन मारुति और यू डू इन 100 रुपीज़ शेयर, इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस. व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि आप किस शेयर्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं. सो दिस शुड बी योर क्राइटेरिया. डोंट लुक एट द प्राइस. So, Dhiren ji, as a beginner, if I have a amount monthly which I want to invest, what will be your view? How I can allocate my fund? Should I invest entire in equity since I am in a younger age, or what is your view on this? सो संजीव जी, आपका जो इन्वेस्टमेंट जो क्राइटेरिया है वो पहले तो आपका डिपेंड करता है आपके एज में. अगर आप अर्ली एज में जो होते आपका, आप ज़्यादा एग्रेसिव होते, आपके पास एक लंबा एज होता है इन्वेस्टमेंट का, और जैसे आप एज ओल्ड होते तो आपके पास कम टाइम फ्रेम होता है किसी इन्वेस्टमेंट के. सो अकॉर्डिंग टू मी, एट द इनिशियल एज ऑफ योर ईयर, योर टोटल इन्वेस्टमेंट should be bifurcated almost like 60% in a product like shares or capital market product, और बाकी का जो है आपका 40% आप जो है अदर प्रोडक्ट में जो फिक्स्ड रेवेन्यू आपको दे. बिकॉज 60% इसलिए है बिकॉज आपके पास रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है तो आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं. एज एन जब आप ग्रो होते हैं, यू क्रॉस 40-50, देन योर एलोकेशन शुड बी मोर इन फिक्स्ड प्रोडक्ट, फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट like mutual fund or debentures or fixed this income, and lesser in the market products जैसे shares वगैरह होते हैं. So as I said that it all depends upon your age. At the early age definitely in aggressive, and at the later age more in conservative. Dhiren ji, I would like to say thanks to you for coming down and giving us such a good knowledge on the investment. Thank you for coming. Thanks for the invitation. सो दोस्तों, आज अपनों ने सीखा कि इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ है, किस तरह की इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, एंड स्पेशली इन शेयर्स इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनों को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, हाउ वी कैन एलोकेट अवर पोर्टफोलियो एज पर द एज. आई होप ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा. एज अ बिगनर इन इन्वेस्टमेंट आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि पोर्टफोलियो का कैसे अपनों को एलोकेशन करना चाहिए. आने वाले एपिसोड्स में अपन इसके ऊपर और डेप्थ में भी बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि शेयर्स में भी अगर इन्वेस्टमेंट करनी हो तो अपनों को किस किस तरह की करनी चाहिए. आई होप यू लाइक द कंटेंट. इफ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स फॉर द बेटर रीच, एंड स्टे ट्यून विद अस. सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप इन टच विद अस. स्टे ट्यून, स्टे सेफ.